الله الرحمن الرحيم. کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے. ناظرین یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا, آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی. اللہ الصمد صرف ایک دن کا وظیفہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے گھر دے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جولی میں اتنی دولت آئے گی, اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پیسے کو سنبھال سکتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لینا. پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا. آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑوں پتی اربوں پتی بن جاتے ہیں. کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا. اگر آپ بھی راتوں رات کروڑوں میں اربوں میں کھیلنا چاہتے ہیں تو پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ الصمد کا وظیفہ آج جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پڑھ لیں. اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 30 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا. 1 منٹ میں نہیں کہہ رہا, 30 سیکنڈ آدھے منٹ کا یہ عمل آپ لوگ کوئی بچہ بھی پڑھ لے. آدھے منٹ کے لیے آپ لوگ اگر وقت نکال سکتے ہو تو یہ کوئی وقت ہی نہیں ہے. آدھے منٹ تو کسی سے ہاتھ آگے بڑھاتے تو سلام کرنے کے لیے بھی آدھا منٹ نکل جاتا ہے. تو آدھے منٹ کا جو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا وہ آدھا منٹ نکال کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوا دوں, اس عمل کے اس ترتیب سے آپ کو بتانے لگا ہوں. قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہو تو قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے. اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لو. گھر میں جھگڑے ہیں, مفلسی ہے, لاچاری ہے, بے روزگاری ہے تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لینا. جس طریقے سے یہ عمل بتانے لگا ہوں اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا. اپنی طرف سے تبدیلی مت کرنا. وظیفہ سمجھو, ایک ایک بات, ایک ایک لفظ سمجھو. کس طرح کون سا وظیفہ کس ترتیب سے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے, کس جگہ پڑھنا ہے, کس وقت پڑھنا ہے, کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے. یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو. جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کاٹتے ہو, بس جلدی میں سمجھ لیا, بس میں پڑھ لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. ناظرین انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے, دولت نہ ہونا ہے. غریبی اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے, دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں کی پریشانی. بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ ہے. تنگ دستی میں, مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے. جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں, ضروریات ہوتی ہیں, فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے. ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے. جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے. جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے. جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو, مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو, کوئی ایسی بیماری یا پریشانی ہو کہ اس کا حل نہ نکلتا ہو, وہ پریشانی بھی اس وظیفے پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی. آج رب کریم کے حضور جولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا. میں بڑی بات نہیں کرتا, آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا. یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے. جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتا چلا ہے, میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے, اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے. خالی کو دولت سے بھر دینے والا, دولت کو چھما چھم بارش کر دینے والا, یہ سچا عمل ہے. جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا, سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا. اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں. دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں, ہم رزق روپیہ پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا. دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے. اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے, اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں, تو کچھ حاصل نہ ہوگا. اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے. جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے. اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے, کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے. جو انسان, حیوان, فضا میں اڑنے والے پرندوں, زمین پر بہتے ہوئے دریاؤ, سمندر, بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں, حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹیوں کا بھی مالک ہے اور پروردگار ہے, جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں. اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟
जब जिंदगी में गमों के गहरे बादल हों, रोशनी की उम्मीद ना हो, जब सहरा में भटकने वाले मुसाफिर को एक बूंद पानी की उम्मीद ना हो, जब जिंदगी में खजा ही खजा हो, बाहर की कोई उम्मीद ना हो, इस वक्त दिल से ये आवाज आना परेशान ना हो, अल्लाह है ना, अल्लाह पर यकीन तो समंदर से भी ज्यादा गहरा होना चाहिए। जितने भी मुश्किल हालात हों, जितने भी अंधेरे हों जिंदगी में, फिर भी तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए कि एक दिन इस अंधेरे में रोशनी की किरण जरूर चमकेगी। जो अल्लाह की अजीम जात पर कामल यकीन रखते हैं, फलाह कामयाबी भी इन्हीं के लिए हुआ करती है, तकदीरें भी इन्हीं की बदला करती हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल और भरोसा करो जिस तरह तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क देगा जैसे परिंदों को रिज़्क देता है। परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे हुए पेट वापस आते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लुटाता। जो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरों के दर से मांगते हैं, क्या इन्हें अल्लाह की जात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं? क्या इन्हें इस दुनिया के लोगों पर अल्लाह की जात से ज्यादा भरोसा है? जो जात रातों को दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को नींद में भी नीचे गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकती है? अल्लाह पाक की जात तो रहीम करीम है, इंसान को इसकी सोच से बढ़कर अता करने वाली। अल्लाह तो फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, और अता भी ऐसा करूंगा कि इंसान हैरान रह जाएंगे। लेकिन हम इंसान ही बेवफा हैं जो दर बदर जाकर सर झुकाते हैं, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बनाए हुए बंदों से मांगते हैं। अल्लाह पर यकीन के मामले में ज्यादा सोचा मत करो, आंखें बंद करके यकीन कर लिया करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ फलाह कामयाबी नसीब होती है। यही वो रास्ता है जहाँ पर कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। यही वो रास्ता है जहाँ दुनिया और आखिरत समझ जाती है। अल्लाह तो कादिर मतलब और बेनियाज है, इंसान की सबसे ख्वाहिशात पूरी करने पर कादिर है। बस अल्लाह की जात पर कामिल यकीन होना चाहिए। अल्लाह की जात पर यकीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जिनके तवक्कल के जरिए आग ठंडी कर दी गई। अल्लाह पर तवक्कल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जो दरिया में भी रास्ता बनवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को यकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल तो शदीद तूफानों में भी कश्ती नूह को पार लगा देता है। तो क्या हम अपने रब पर तवक्कल नहीं करेंगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? हमेशा अपनी अक्ल से ज्यादा अल्लाह की जात पर भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह पर पुख्ता यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। अल्लाह पाक कहीं न कहीं से रास्ता निकाल ही देता है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों को परेशान नहीं देख सकता। वो तो ऐसी जगहों से इंसान को नवाजता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुआएं मौजज़ों का बाइस बनती हैं और रब के हुक्म कुन फयकून से तकदीरें बदल जाया करती हैं। बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा जरूरी है। अल्लाह पर यकीन इतना कामिल होना चाहिए कि अल्लाह कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता। अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाए तो माशरे से बहुत से गुनाहों का खात्मा हो जाए। अगर इस बात पर यकीन आ जाए कि किस्मत में जो लिखा हो रिज़्क किसी दूसरे के पास नहीं जा सकता, तो कभी इंसान दूसरे के हक पर डाका न डाले, कभी कत्ल जैसा कबीरा गुनाह न हो, कभी यतीमों का माल न हड़पा जाए। अल्लाह पर यकीन करने वाले कभी भी जिंदगी की मुश्किलात से घबराया नहीं करते, जिंदगी में छाए हुए गमों के बादलों से परेशान नहीं हुआ करते, क्योंकि इनका यकीन वाहिद व यकता रब पर होता है, जहाँ बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाया करती है। गमों के छाए हुए बादल खुशियों की किरणों में बदल जाया करती। जब दिल अल्लाह की रजा पर राजी रहने और शुक्र की आदत डाल ले तो सुकून मुकद्दर बन जाता है। जिनका भरोसा अल्लाह पर हो उनकी मंजिल फलाह और कामयाबी है। इसीलिए आप जब भी कोई भी वजीफा शुरू करें, इसके लिए आपको अपने रब पर यकीन होना बेहद जरूरी है। अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन करते हुए ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाज़रीन, आप लोग अल्लाह पाक का नाम पढ़ो, कुरानी आयात पढ़ो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फायदा न हो। लेकिन आप लोग एक तो जल्दबाजी में वजीफा पढ़ते हो, ऊपर से आप लोग बेदरी से बेतरतीबी से, और आपको यकीन नहीं होता, दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा या नहीं। तो इस तरह ना करो, आपका वजीफा इस तरह करने से कभी असर नहीं करेगा। तो तमाम चीजों का ख्याल रखो। ये वजीफा आप लोग किसी भी दिन कर सकते हो। सब लोगों को जो सवाल होता है किस दिन करना है, तो किसी भी दिन कर सकते हो। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार, जिस दिन करना चाहो आप लोग कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। अपनी मर्जी के दिन ही आपकी पूरी जिंदगी के लिए ये वजीफा काफी है। लेकिन बहुत से लोगों को इस वजीफे से फौरी तौर पर जब फायदा होता है
तो वो फिर दोबारा भी करना चाहते हैं। वो पूछते हैं क्या हम रोजाना पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोग पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन आपको दूसरे दिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही दिन में आपकी किस्मत अल्लाह पाक ने चाहा तो बदल जाएगी। आज आपको वो वजीफा बताने लगा हूँ। आपके दुख तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, बेरोजगारियां, घरों में झगड़े, बे औलाद की परेशानियां और शादी के मसाइल, कर्जों के बोझ, जाती मकान, जो कुछ आपकी हाजतें, मुरादें, परेशानियां इंशाल्लाह वजीफा पढ़ते ही आप लोग अपनी आंखों से गैबी तरीके से अपने पास पैसों को आते हुए देखेंगे। चारों तरफ से आपके रिज़्क के असबाब खुल जाएंगे। रिज़्क के बंद दरवाजे फौरी तौर पर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो खुल जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी, जो लोग आपके हसदीन आज आपसे जर रहे हैं, जो लोग आपको और आपके रिश्तेदारों में, खानदान में, दोस्त अहबाब में आपकी गरीबी का मजाक बना रही हैं, आपको दुदकार रही हैं। आपके ऐसे हालात हैं कि आपने लोगों से इतना पैसा मांग लिया है, कर्जे आपने इतने लिए हुए हैं कि अब तो आपको कोई कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं। लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको देखकर एक गली से दूसरी गली बदल देते हैं। क्या ये सामने से आ रहा है? आप बिल्कुल कर्जदार बन चुके हो, आपकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो आप फौरी तौर पर इस वजीफे को पढ़ लें। आप दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद हैं, अपनी परेशानियों में हैं, दुख तकलीफ बीमारियों में हैं, तो ये वजीफा आप कर लें। नाजरीन, वजीफा पढ़ने से पहले सुकून से बैठ जाएं। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले जब सुकून से बैठ जाओ, चाहे दफ्तर में, चाहे दुकान में, किसी भी दिन आप लोग पढ़ सकते हो। चाहे तो एक दिन पढ़ लिया करो या रोजाना पढ़ लिया करो, लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि आपको दूसरे दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन आप लोग पढ़ के देख लो और जिस दिन पढ़ना शुरू करो उस दिन आप लोग चाहे जहां भी हों, कोई भी जगह की पाबंदी नहीं, सुकून से बैठ जाओ। किसी भी वक्त, सुबह, शाम, रात, जब आपका दिल करे, सुकून से बैठकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। सिर्फ एक मरतबा सबसे पहले वजीफा शुरू करने से पहले जो आपको काम करना है, एक मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ के इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लें तो तीनों वज़ाइफ पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद तीनों वज़ाइफ इतने आसान हैं, जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता, जो अनपढ़ हैं, ऐसे कई बहन भाई आते हैं कि हमें आसान वज़ाइफ बताएं, हमें पढ़ना नहीं आता, तो वो भी आज का वजीफा सुन लें। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लें तो 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। कोई सा भी आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको इस वजीफे को पढ़ें। ये वजीफा आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। जिस दिन ये वजीफा पढ़ रहे हूँ, आप इस दिन जितने चाहें और वज़ाइफ पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं। वज़ाइफ आप अपने जो रोजाना पढ़ते हों वो भी आप लोग पढ़ लें और साथ में इस वजीफे को भी पढ़ लें। इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं, लेकिन इस वजीफे से इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपके मसाइल आप खुद अपनी आंखों से हल होते देखेंगे। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको जो पहला वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे के लिए तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर। सिर्फ 3 मरतबा आज का जो अमल है, पहला वजीफा है इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। सिर्फ 3 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब इस वजीफे को पढ़ लें तो दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये दोनों इसमें आजम वज़ाइफ मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह पढ़ेंगे, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें और हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। ये वजीफा या हय्यु या कय्यूम का है। आप लोग 7 मरतबा पढ़ लेना है। दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह आपको 7 मरतबा या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ लेना है। जब इस वजीफे को पढ़ लें तो तीसरा और आखिरी वजीफा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये है वजीफा अल्लाहु समद का। आपने अपनी जिंदगी में अल्लाहु समद का वजीफा बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के अमल में सबसे आखिर में आपको ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे के लिए भी आप लोग अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, नहीं तो सीधे हाथ में इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। आप लोगों ने सबसे आखिर में 33 मरतबा आपको ये वजीफा सबसे आखिर में पढ़ना है और इसके बाद आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था और अपने दोनों हाथों पर दम कर लें, फूंक मार लें और दोनों हाथों को अपने चेहरे, अपने सीने पर, अपनी पेशानी पर फेर लें। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से जो भी हाजत हो, मुराद हो, परेशानियां हों, उसके लिए दुआ मांग लें। नाज़रीन, दुआ चूँकि एक ऐसी इबादत है जिसकी
قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود پاک اور دعا ایک ایسی واحد عبادت ہے۔ اس لیے ناظرین، اللہ پاک سے گر گرا کر مانگا کریں، کوشش کریں اور درود پاک کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس وظیفے کی برکت سے خوب دعائیں کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم اینڈ ٹیک کیئر۔